हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल along with our simultaneous broadcast on 10 Sports of the ICC Men's T20 World Cup, brought to you directly from the United Arab Emirates. So it's another day at the ICC T20 World Cup and we have a double header. Before we get going with the business, let me bring in my panelists, legends, superstars with me in the pavilion. The Sultan of Swing, Wasim Akram. The incredible toe-breaking Waqar Yunus. The cool, composed operator, Misbah ul Haq. And the young, dashing, sizzling Wahab Riaz. Assalamu alaikum, gentlemen, and welcome. Here's another day at the pavilion. Good afternoon, Assalamu alaikum everyone. Absolutely another day. लग रहा है 6 साल से ये शो कर रहे हैं. महसूस ऐसे ही हो रहा है अब. लेकिन सारे इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही. Say something on that. या आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे थे? मैं तो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ. I think compliment देना. वही मैं कहना चाह रहा था. No, but we've got to really, we have to thank Wasim Akram कि ये जो आज हमारी आप wardrobe देख रहे हैं, it is brought to you by and brought to us by Almira. Vaz 502 collection. This is the Wasim Akram collection that we're wearing. By the way, really nicely stitched everything. Thank you very much, guys. Wasim. You look the part. जबरदस्त लग रहे हैं. Thank you, Wasim अच्छा, भाई. ये डिजाइनर ये वाला शौक कहाँ से आया था? Looking really, I mean, I'm really मुझे impressed. काफी सारे शौक हैं जो आप लोगों को नहीं पता. मुझे आर्किटेक्ट का बड़ा शौक है. Oh, design homes as well. Not design homes, but I like looking at good architect and talking to architects and all. Yeah. That's nice. That's super nice. But thank you so much. Thank really, you really guys. nice. You're looking cool. कैसा लग रहा है आपको वहाब? आप I feel amazing. Thank Yeah. you, Wasim bhai. But one is not enough. Thank you. वहाब That's what I बल्कि wanted. ये देखें ये बात. देखिए कल मिसबाह उल हक ने ये बात बोली थी जब ये हमने देखा कि हमारी इस तरह की वॉर्डरोब आ रही है तो मिसबाह ने कहा कि अगली 2-4 ईदों का बंदोबस्त कर दें वसीम भाई. That's what I wanted to thank him. आपको didn't you hear that? Yes. He also already announced it. जी और He's दोस्तों making सदरे ए स्पोर्ट्स ने अनाउंस कर दिया है आम तातील का ऐलान कर दिया है. नहीं, आइडिया इज कि तुम लोग ये आके खरीदो और तुम मुफ्त के चक्रों में लगे हुए सारे. कम ऑन वहाब. वसीम भाई, लोग खरीदे. आपके होते हुए भी अगर आपके अपने वार्डरोब से अगर हमें कोई चीज खरीदनी पड़े तो फिर दिस इज नॉट. That's quite normal actually. No, it is not. All right, enough. But if you want, by the way, मैं बताऊं वहाब की जैकेट Yeah. सबसे जबरदस्त है. I like that one. I mean his basket. खड़े होकर वहाब, why don't you give us वो पूरे एक जरा ऊपर से टॉप टू बॉटम लुक दिखाएं उस वाले कैमरे में खड़े होकर 7 पे. खड़े हो जरा प्लीज. नहीं हो सकता. प्लीज खड़े हो. All right. Enough of that. But really, thank you once again, Wasim. We're really thoroughly enjoying it. And with that, let's move on with the business of cricket. ICC Men's T20 World Cup. We've got a double header today. But इससे पहले कि हम देखें कि आज कौन सी दो बड़ी गेम्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उससे पहले नजर डालते हैं जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर. ये पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. इसके ऊपर नजर डालें so that we have a better idea because we are now getting onto the business end of the tournament. So ये ग्रुप 2 है दोस्तों, पाकिस्तान का ग्रुप है. इसमें पाकिस्तान राइट इज ऑन टॉप विद 4 points which is great. 2 गेम्स खेली हैं पाकिस्तान ने. स्कॉटलैंड ने भी 2 गेम्स खेली हैं, कोई अभी तक उनके 0 points हैं. राइट एट द बॉटम. नामीबिया विद 1 game 1 win at number 3. अफगानिस्तान विद 1 game and 1 win at number 2. न्यूजीलैंड 1 game, no points, and India 1 game, no points. On the other hand, England and Australia convincingly sitting right on top of that Group 1 table. South Africa there, they must be a little concerned now because you've got England and Australia looking really, really good. Sri Lanka there, they're still in with a chance like South Africa, so there's going to be a good battle over there. But Bangladesh, West Indies, well, they haven't got anything and it's going to get really difficult for them if they don't get a win in fast. ये सूरत हाल है. आज 2 मैचेस हैं. पहला मैच आपकी खिदमत में अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए. ये पहला मैच है हमारा. वेस्ट इंडीज बा मुकाबला बांग्लादेश शारजा क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. दोनों टीम्स जो हैं वो जीतना चाहती हैं क्योंकि दे वांट सम पॉइंट्स ऑन दैट टेबल. दे हैव टू. वेस्ट इंडीज याद रहे कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. और दूसरा मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एंड दिस इज द बिग वन. अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान. Now for Pakistani fans, big one. So is it for the Afghanistani fans as well because this is going to be a truly interesting clash. याद रहे कि माजी में recently 2 ICC इवेंट्स में ODIs के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाले रखा. दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता but they proved to be a really great opponent.
With that, let's start off with the first game. West Indies, Bamukabla, Bangladesh. Both of them struggling, Wasim. Yeah, they are, but it's a very important game for both of them. उसकी रीज़न ये है कि ये मैच दोनों टीमों को जीतना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि इनको थोड़ी सी होप मिल जाए कि चांस बन सकता है हमारा करने का, रन रेट दूसरी टीमें हारें. अगर आज की टीम जो मैच हारती है, दे प्रॉब्ली आउट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप. बाकी जो उनके मैचेस होंगे रन ऑफ द मिल होंगे. सो या दोनों टीमों को आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने एक चेंज किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दे ब्रॉट इन होल्डर, जेसन होल्डर फॉर उबैद मकॉय. सो ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आया. बेसिकली बॉलर की जगह ऑलराउंडर आया क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉल मेनली ही इज अ बॉलर. होल्डर ही वाज प्लेइंग इन द प्रीवियस कपल ऑफ सीरीज. टेस्ट कैप्टन. यस ओके. असल में मकॉय जो है उस CPL में मेरे साथ था. वी वर इन द सेम टीम और उसको ना इंजरी थी काफ की. ठीक है. सो बेसिकली उसके काफ में काफ़ी पेन थी. सो उस वजह से उसने काफ़ी मैचेस जो हैं वो क्या कहते हैं मिस आउट भी किए और कुछ CPL में और कुछ मैचेस में ही वाज स्ट्रगलिंग टू बॉल एज वेल जो खेल रहा था. सो वहाब क्वेश्चन, आप अभी PSL में आपने कप्तानी की. जिस जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की है एज अ टीम इन अ टूर्नामेंट, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम? वसीम भाई, इट्स अ गेम ऑफ लाइक यू नो अब दो मैचेस हार गए हैं. सो आई वुड लाइक दैट एवरीबडी शुड प्ले फॉर देयर रेपुटेशंस. ठीक है. राइट. इतना अच्छी टीम है, वेस्ट इंडीज़ भी बहुत अच्छी टीम है, बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन दोनों टीमें जो है वो अभी तक इतना कोई इम्पैक्ट डाल नहीं सकी एज अ टीम. दे डोंट लुक लाइक इन अ गुड पोजीशन और इन अ वे कि आप ये कह सकें कि यार ये टीम जीतेगी. बट टुडे इज़ द गेम. They know that they must be out of the tournament now, but still it's the game for their own self to prove. Like Saqib hai, Mahmood Allah hai, मुस्तफिजुर है. दे हैव टू प्रूव अ पॉइंट दैट द बांग्लादेश इज़ अ गुड टीम. अभी वो 2-3 सीरीज़ें अपने होम ग्राउंड में जीतती भी आई हैं. सो दे हैव टू शो दैट इट्स नॉट दैट दे कैन ओनली विन इन देयर ओन होम कंडीशन. अभी इफ यू रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया को मारा है. एग्जैक्टली. और दे हैव प्लेड इन देयर ओन होम कंडीशन एज वेल. आई डोंट नो वेस्ट इंडीज़ का क्या इशू है. दे आर अ गुड टीम बट दे हैवंट जेल्ड बैक और मोस्ट प्रोबेबली द कॉम्बिनेशन आई थिंक दैट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. जेसन होल्डर के टीम में आने से आई थिंक they will get somebody who can bowl with the new ball, especially on these wickets जिधर उसकी height है, उसकी length अच्छी है, he swings the ball both way और he can get wickets up front, which was missing from the West Indies team so far. So I think उसका आना can be good for West Indies. Vicky, same question to you as a coach, both of you in fact. बारी-बारी आंसर कर सकते हैं आप लोग कि ऐसी सिचुएशन में चलो आज तो मौका है, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो. वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के कप्तान और कोचेस कह सकते हैं उनको कि भाई ये हम क्वालिफाई के चांसेस हैं, वी हैव टू विन दिस. अगर ये सिचुएशन ना हो जहां आप बिल्कुल डेड रबर खेल रहे हो, सो वहां पे कैसे मोटिवेट करते हैं टीम को एज कोचेस? That's a tough period. That's very difficult. जब आपको पता हो कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, फिर आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि जो बेंच पे लड़के हैं ना, गिव देम द अपॉर्चुनिटी. सो दे शुड आल्सो हैव द टेस्ट बिकॉज दे आर योर फ्यूचर. आई नॉर्मली से दैट बेंच पे आपके यंगस्टर्स बैठे होने चाहिए. बड़े टूर्नामेंट हो या बायलैटरल सीरीज हो, अगर आपके यंगस्टर्स बेंच पे बैठे हैं तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो, उनको टेस्ट देते हो कि गोइंग फॉरवर्ड अगले साल फिर T20 का वर्ल्ड कप है, फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप है. सो देयर इज लॉट ऑफ ICC टूर्नामेंट्स आर कमिंग. सो यही कर सकते हैं आप. लेकिन इस सिचुएशन में आई फील कि यू कैन रियली लिफ्ट देम. आई मीन दे ऑल वेरी सीजन, स्पेशली वेस्ट इंडीज में. आई मीन दे बीन द वर्ल्ड चैंपियन और मोर और लेस वही टीम है ये पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में जो ये लोग जीते हुए हैं. सो दे नो हाउ टू विन द वर्ल्ड कप. बट द थिंग इज उन्होंने अपने लिए खुद गड़ा खोद लिया, मिस कर दिया अपने लिए, स्पेशली पहले मैच में जब I'm all for losing games, but it's just the attitude. lethargic, ढीले, don't want to be there, ऐसे लग रहे थे. Yeah, that's happening with West Indies. I mean, being the defending champion, जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है, आए हैं, कुछ लगा नहीं कि उस तरह खेल रहे हैं. बड़े दबे और कुछ जो फ्लेयर है वेस्ट इंडीज़ का वो बिल्कुल नहीं है. कर लेंगे इसी एटीट्यूड के साथ अभी तक चल रहे हैं. और ऐसी एक इनिंग ऊपर से हुई कि जिसकी वजह से वो पिछले मैच में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वेस्ट इंडीज़ को. बट आई थिंक फॉर वेस्ट इंडीज़ प्लेइंग इन शारजा, प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, knowing the conditions, मेरे ख्याल में
पावर गेम बड़ी ज़रूरी होती है, जैसे अफगानिस्तान ने शो कराया. सो क्लियरली आई थिंक दैट्स द बेस्ट चांस फॉर देम, जिसको वो देख रहे होंगे कि ये एक तो दूसरी टीम भी अंडर प्रेशर है, दोनों एक ही सिचुएशन में है, इस कंडीशन इन कंडीशंस में उनका बेस्ट चांस है. लेट्स जस्ट गेट अ किक स्टार्ट फ्रॉम हियर और जस्ट गेट बैक. विनिंग वेज जब आप वापस आते हैं, डेंजरस टीम है, किसी भी टाइम किसी भी टीम को हरा सकती है. For West Indies, Sharjah is a preferred venue. I think they like it. For their performances there have been better when they come to the United Arab Emirates. But let's not forget again, it's Bangladesh that is the Asian side here. They are playing in familiar conditions, so they have that advantage. एक और चीज़ जो बड़ी interesting है मिसबा, now West Indies like to really go after the bowling. पावर प्ले से वो शुरू हो जाते हैं. दूसरी तरफ बांग्लादेश 2019 से लेकर अभी तक सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट रहा है किसी टीम का अगर इन T20 फॉर्मेट, तो वो बांग्लादेश का रहा है इन द पावर प्ले. सो दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. जी बिल्कुल. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, बांग्लादेश रिलाय मोस्टली ऑन देयर स्पिनर्स. राइट. और शारजा एक ऐसी पिच है, ऐसी ग्राउंड है कि जहाँ पे यू कैन गो आफ्टर द स्पिनर्स. स्पेशली वेस्ट इंडीज़ तो खेलती ही ऐसी है. इवन लुइस अच्छी फॉर्म में है, लास्ट जिस तरह बैटिंग की. आई थिंक फॉर अदर्स ऑल्सो बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके बाकी बैट्समैनों के लिए, ये ऐसी ग्राउंड है कि यहाँ पे वो गेम चलती है जो नॉर्मली वेस्ट इंडीज़ खेलती है. कि आपने 4 बॉल खेलें कोई मसला नहीं, बट इफ़ यू हैव द पावर कि 2 आपने क्लियर कर दिए, 2 बाउंड्रियाँ आपने मार दी, छक्के काफ़ी लगते हैं और छक्कों पे स्कोर होता है, चौके नहीं होते, और नीचे ग्राउंडेड शॉट्स में भी इतने ज़्यादा रन नहीं होते. जिस किस्म की ये ग्राउंड है, 2 स्कोर तो मैंने बहुत कम देखा है यहाँ पे. तो आई थिंक ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ को एडवांटेज थोड़ा सा है. मिसबा, हैरत जो मुझे वेस्ट इंडीज़ से ये हुई है कि अभी हम वेस्ट इंडीज़ में थे बिफोर लीविंग, और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस दे वर लाइक दिस. आई मीन दे वर बिग टर्नर्स, और बुरा नहीं खेल रहे थे ये. आई डोंट नो, दे फर्स्ट गेम दे टुक इट लिटिल लाइटली एंड दे जस्ट स्ट्रगलिंग नाउ, बिकॉज दूसरा मैच तो उन्होंने आपको हरा दिया. और दूसरी बात, इनको ओपनर का करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जिस तरीके से सिमंस खेला है, ही हैज रियली लेट द टीम डाउन. और इतनी गेंदें अगर खा जाएगा एक बैट्समैन ऊपर से, एंड ही वाज नॉट इवन ट्राइंग. सो आई हैव अ फीलिंग कि दे विल आस्क हिम टू सिट आउट, और मे बी फ्लेचर माइट प्ले. सो आई थिंक फॉर सिमंस इज बेसिकली देयर कि ऑफ स्पिन आ जाती है, जो कि उनके लेफ्ट हैंडर्स को गेल और इवन लुइस के अगेंस्ट नॉर्मली टीमें यूज़ करती हैं. तो मेरे ख्याल में उसमें सबसे जो बेटर ऑप्शन है इनकी फ्लेचर है. फ्लेचर इज़ वेरी गुड अगेंस्ट पेसर्स, और जिस तरीके का वो बैट्समैन है, वो किक स्टार्ट जिस किस्म का चाहिए होता है, आई थिंक उनको ऐसा बैट्समैन चाहिए. अभी अगर ये ऐसे खेलेंगे तो मेरे ख्याल में दे गॉट नो चांस. देखिए, वो जिस तरह हम बात करें, पावर प्ले जीतना बहुत ज़रूरी है, और वो हमने देखा कि लास्ट मैच में एवन लुइस की जो इनिंग्स थी, दैट हैज़ मेड अ डिफरेंस, बट उसको साथ में कोई सपोर्ट थी नहीं. सो इवन आफ्टर स्कोरिंग रन्स दे वर 60 इन द 10 ओवर्स. सो दे हैव टू हैव समबडी, बिकॉज हमने ये देखा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में कि जो टीम पावर प्ले और फिनिश अच्छा करी है, दे आर गेटिंग अ गुड टोटल. प्लस हमने पहले भी बात की थी वेस्ट इंडीज़ की, कि वेस्ट इंडीज़ शुड नॉट थिंक लाइक दिस कि हमारे जो गेम खेलने का एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है, जिसमें वो ये कहते हैं कि यार ठीक है कि हमें अगर आखिरी 5 ओवरों में 60 या 70 भी चाहिए तो हम वो अचीव कर लेंगे. दीज आर नॉट दोज विकेट्स. स्पेशली वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स हैं, पर वो फिर भी बॉल बैट पे बहुत अच्छा आता है. आई थिंक दे हैव टू चेंज दैट मेंटेलिटी. दे आर स्टिल प्लेइंग विद दैट मेंटेलिटी कि हम लोग जाएंगे और हम एक दम में अटैक करेंगे एंड वी विल स्कोर द वे वी हैव बीन, और इस वजह से दे आर नॉट एबल टू स्कोर रन. ये हमारा डिस्कशन वहाँ पहले भी हुआ था कि वो कहते हैं 10 गेंदों पे कितने छिक्के मारने. यू नो दैट अप्रोच दैट दे कैरी विद देम. एग्जैक्टली. लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा आपके ऊपर आ जाता है कि व्हेन यू हैव टू स्कोर हियर, बॉल थोड़ा होल्ड करता है, कभी ग्रिप करता है, कभी टर्न हो जाता है, कभी फास्ट बॉल का बॉल रिवर्स होता है, यू नो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो वेदर यू प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान कि हाउ यू हैव टू अचीव इट. हर रोज़ आके हर एक लड़का आके स्कोर नहीं करेगा. सो दे शुड प्लान इट रियली वेल. शारजाह में उनको ये थोड़ा सा होगा कि फ्लैट विकेट है, टर्न ज़्यादा नहीं होता, बॉल थोड़ा लो रहता है, but for their liking that is going to be something, and they will score runs. They got to drop Brindle Simmons. They have no other option. They do have to. मेरा तो ये ख्याल है कि रोस्टन चेस अभी CPL में रोस्टन चेस खेला है. They are struggling कि उनका अकील हुसैन और वॉश बॉलिंग करता है. रोस्टन is a complete batsman who has scored so many runs there. मुश्किल विकेट्स थी इस दफ़ा CPL में. Plus he is an off spinner who can bowl
to both to right hander and to the left hander, so that brings another equation. रवि रामपॉल जो है वो ठीक है बॉलिंग कर रहा है, वो थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर रहा है, बट अगर आपके पास जेसन होल्डर जैसा बॉलर है जिसके पीछे पेस है और सीम बॉलिंग करता है, he can be very much Jason is not that effective. quick though. He's about medium-ish. लेकिन हम वही बात करेंगे कि he is tall. हाँ. So if he clicks 135 plus, he can make a difference, or even 135 on these wickets, he can always make a difference. And Roston Chase can only come in if Gale अगर ओपनिंग करेगा इवन लुइस के साथ, आई थिंक Exactly, क्योंकि दोनों तरफ से तो आपको ऑफ स्पिनर नहीं लगेंगे ना. नहीं, अब मैं तो बांग्लादेश की समझता टीम में हूँ वो जो इनसे बांग्लादेश तो वसीम भाई लाजमी उनका जो ऑफ स्पिनर है Yeah. मेहदी वो तो लाजमी कराएंगे. But I think they missed the trick with their player Nicholas Puran. Yes. I think he's getting wasted at number 4, number 5. Imagine if he comes as an opener. The shots he had, he's got. दे आर अ लिटिल बिट वरिड. वेस्ट इंडीज़ की टीम को कभी भी ऐसे नहीं देखा स्पिनर्स को खेलते हुए, क्योंकि अगर आप उनकी लास्ट 2-3 सीरीज़ देखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफरेंस ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जब फास्ट बॉलर्स आते थे दे यूज्ड टू अटैक देम. जैसे ही स्पिनर आते थे, जैम्पा और एगर बॉलिंग कर रहे थे, तो दे हैव नो क्लू टू हाउ टू प्ले देम. इसी तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी हमने देखा कि शमसी और जो जॉर्ज लिंडल था, उन्होंने उनको प्रॉब्लम किया. इवन के वो उनके लेफ्ट हैंडर होने की वजह से वो लेफ्ट हैंडर्स को भी बॉलिंग कर रहे थे, दे वर नॉट एबल टू स्कोर रन्स. फिर हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैचेस देखे जो थोड़े से शुरू हुए, दे कैपिटलाइज्ड ऑन द फास्ट बॉलर्स, बट व्हेन दे कम्स टू हफीज़ भाई, शादाब, इवन के उस्मान कादिर जो मैचेस खेला, दे हैव नो क्लू हाउ टू प्ले इट. आई थिंक दे हैव टू चेंज दैट थिंकिंग. They struggle to pick the spinners, especially the wrong one. Right. But they are good enough. और वो तब spinners को अच्छा खेलते हैं when they have a start up front. जब उनके 6 ओवरों में 50-60 लगाओ, विकेट कोई ना गिरी हो, then they come and attack your spinners as well, because then there is no pressure. But शुरू में स्कोर ही नहीं होता उनसे पावर आप प्ले. जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट्स हैं, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट वहाँ खेल के आए हैं, इनका जो प्रॉब्लम है, देयर स्ट्राइक रेट्स आर वेरी लो अगेंस्ट ऑफ स्पिन. निकोलस पूरन, इवन लुइस. निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है जिसका अगेंस्ट लेग स्पिनर, अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, एनी टाइप ऑफ स्पिन एंड पेसर्स, उसका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, एवरेज भी ज़बरदस्त है. तो ये इस वजह से भी थोड़ा सा डरते हैं. थोड़ा इलैबोरेट करें. ये तो आपने स्टैट बता दिया ना, जरा कोई वजह भी हाईलाइट कर दें जो देख रहे हैं हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स के. व्हाई, व्हाट इज हिज टेक्निक दैट ही इज सो बेटर देन द अदर्स? इसकी जो मेनली वजह है कि इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलता है वो. He doesn't go across the line, मतलब हर टाइम लेग साइड पर विद द स्पिन बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के ऊपर से बहुत अच्छा खेलता है. और इवन लुइस का भी इसी तरह है कि जिस तरफ उसको बॉल मिलता है वो उस तरफ खेलता है. राइट. उतना गुगली पे उसका भी स्ट्राइक रेट उतना नहीं है. जो निकोलस पूरन है, गुगली पे भी उसका जो है रिकॉर्ड वो अच्छा है. दूसरे गेल हैं, वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, बट लेग स्पिन के अगेंस्ट उनका भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर है. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इनके जहन में हैं. ऑब्वियसली एट द मोमेंट पिछली 1-2 सीरीज़ों को देखते हुए, इवन लुइस इज़ द की एंड निकोलस पूरन, दोनों ने बहुत रन्स भी किए हैं, बहुत ज़्यादा है, इन्होंने परफॉर्मेंस की है साउथ अफ्रीका सीरीज़, पाकिस्तान सीरीज़. सो दे आर डिपेंडिंग हैविली ऑन दैम. बाकी कोई उस तरीके से उनका प्लेयर अभी तक परफॉर्म नहीं करा. हिटमायर जो हैं वो बिल्कुल ऑफ कलर है, स्कोर नहीं कर रहे, जिसके कलर है उनके मगर बालों में. Plus, I mean, Hitmyer might be a very good player. I haven't seen him much, but looks good. But he's just put on weight. He doesn't look like typical West Indian, वो जो lean होते हैं, you know, lean, fit, muscular. He looks the opposite, like Ravi Rampal. Okay, Ravi Rampal अगर उसमें Indian genes हैं, so he can put on weight easily. Indian means subcontinent genes. रवि रामपाल actually, sorry वकार, we'll come back to this, but you're talking about, ये बड़ा interesting है. ये रवि रामपाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं अगर आप देखें. So he's, I mean, quite a heavy set guy he is. Yeah, he made a comeback. बड़ा अरसा पहले खेला था. He was out of touch for a long time. This is the then he ballooned up. First year he's making a comeback, bowled really well in the CPL, and that's why they picked him here. तो I mean experience तो without a doubt है. लेकिन एक बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि अब आई डोंट थिंक वो लोग अपने आप को बदल सकते हैं इस टाइम इन टूर्नामेंट के बीच में कि जी अच्छा अब छक्के नहीं मारने, अब हमने ऐसे खेलना है, बिकॉज दे डोंट नो द अदर वे. आप उनके जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं या जितने भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं वो दैट्स द वे दे प्ले.
I think all they need to do is, yes, play that way. What they're doing is they're not playing that way. जैसे Simone Weiss कर दी, Gayle आके, I think he takes way too many deliveries. They don't take risks. They're just little bit worried. They're just playing within themselves. Apart from Yvonne Lewis, सारे बाकी जो थोड़े-थोड़े shell में लगे हैं, डरे हुए थे कि हम हार ना जाएं. And that's what happened. That could that be the reason? Because जब हमने Darren Sammy को देखा तो almost यही लड़के उसके अंडर भी खेल रहे थे. Now these boys are playing under Pollard as well. Pollard की हमने पहले भी तारीफ किया because he has united the team, brought everybody back. Is that something you think कि जब Darren Sammy है so उसकी motivation skills जो हैं जिस तरह वो टीम को चलाता है, motivate करता है. आज आपने सुना उसकी जो ट्विटर पे लगा हुआ था उसका, he just gave it a 2-minute speech how to win from here. तो उसने बड़ी अच्छी बातें की. उसने कहा just look within yourself, अपने अंदर देखो कि what are you? You know, you are 2-time world champions. Come on, boys. बड़ा उसने pump किया. Darren Sammy, of course, very famous for his leadership. उसके you know how उसका man manage कैसे करता है, सबको इकट्ठा कैसे रखता है, and stuff like that. But now they have a new captain. Darren Sammy had his time. I suppose अंदर इसके ये कि अच्छा भी खेल रहे थे अभी West Indies में, like you said, under Pollard. I think they're also missing a big time extra spinner. Not कि दो स्पिनर तो हैं, लेफ्ट आर्मर इज फाइन, बट वो जो वॉल्श है is not special, is okay. Recently bowled Bickley. Recently really picked up a lot of wickets. Even against Australia, I think he took 5er, if I'm not wrong. तो सुनील नारायण इसलिए नहीं आया, उनको पिक नहीं किया कि he himself doesn't want to get picked. वहाब कह रहा है कि उसने विकेटें ली हैं, बट वकार भाई वहाँ पे थे, जिस किस्म की पिचेस थी वो बहुत ज़्यादा टर्नर्स थे. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हॉरिबल विकेट्स. आई मीन कंप्लेंट भी की, दोनों कोचेस ने बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ चीखी. जो बारबाडोस में जिस किस्म की पिच थी अनप्लेएबल थी, बिल्कुल इस किस्म के बॉल आ रहे थे, टर्न हो रहा था, बाउंस है नहीं बनता. बट नॉर्मल पिचेस पे आई थिंक वो जो वेरिएशन है लेग स्पिनर की, कि थोड़ा सा लंबा टर्न हो, फ्लिपर हो, गुगली अच्छी हो, उसका इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता. और आपने एक चीज़ बंदा तो मिस कर दिया इसका, आंद्रे रसल, who's supposedly the best all-rounder in T20 format, world cricket, that's all he plays. But his performance has been below average. He sometimes आता है, कभी weight put on कर लेता है, आता है, कभी पतला हो जाता है. He's nothing consistent about him. That's what I'm saying, Wasim bhai, के motivation to get these guys motivated within the team is something very special, because ये लोग इतने अपने क्योंकि इनकी जो आइलैंड्स हैं उनमें ये अपने इतने बड़े प्लेयर्स हैं, they play everywhere around the world, so you know they know they are good players, but you know that ego thing can keep them out of the game. I think basically they just want good. You think Wasim bhai, you think that they're dragging on a little bit? ये जो team है especially, because you know they've won 2 World Cups. लग रहा है, I hope I'm wrong, but from an outside it looks like इनको कोई interest नहीं है. You know, they're there for the sake of being there. Then they go back to their their leagues. जहाँ इनको पैसे मिलते हैं. आंद्रे रसल के हवाले से मेरे ख्याल में played PSL here, और कोई इतना ज़्यादा उसने impact यहाँ अपनी बैटिंग में नहीं डाला. For somehow कुछ शायद conditions की वजह से. Okay, what we'll do is we'll try to line up Andre Russell for a quick chat with us. But meanwhile, आप लोग देख रहे हैं The Pavilion. मैं हूँ फखर आलम, ये है A Sports and 10 Sports. मिलते हैं इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम, ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बराह रास्त आपके लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात से. आज 2 मैचेस. पहला मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, एंड इट इज बांग्लादेश क्रैशिंग विद द डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज. दोनों टीमों ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता अपने सुपर 12 के पूल के अंदर. और दूसरा मैच, इट इज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, द रिंग ऑफ फायर. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे वेस्ट इंडियन प्लेयर आंद्रे रसल की, और आपने अभी बड़ी बात की. मिसबाह, आपने कहा कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया था जब वो PSL में भी आए थे. वी गॉट हिम विद अस राइट नाउ. लेट्स लिसन इन. बट देयर यू हैव इट, आंद्रे रसल देयर. मिसबाह, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात की. एक तो उन्होंने कहा कि यस, आई एम ट्राइंग टू गेट इट राइट बट इट्स नॉट हैपनिंग. Coming down very late, I don't have enough time. दूसरी चीज, we're going to be aiming to hit straight
और आखिरी चीज़ कि बाउंड्री का साइज मैटर नहीं करता जब हम एक दफ़ा बीच में आ रहे हैं तो। बिल्कुल सही, इनके जितने भी हिटर हैं स्पेशली फॉर आंद्रे रसल, जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री हो, वो जब मिडल करता है तो वो बॉल जो है वो मेरे ख्याल में बाहर सड़कों पे ही जाएगी शारजा में। एंड दैट्स द बेस्ट चांस फॉर वेस्ट इंडीज़ आई थिंक। ये जो पिच है इस पे उस तरह बॉल होल्ड नहीं होता, बॉल आता है, थोड़ा सा स्लो है पिच, बट बाकी जो दोनों पिचेस हैं उस तरह का नहीं है। सो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ काफ़ी डेंजरस साइड है यहाँ पे, स्पेशली उनके जो बैट्समैन हैं उनको सूट करेगा, और उनमें से कोई एक भी अगर अपनी इनिंग उस तरह की इनिंग खेल गया, और चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। सो आई थिंक वो जो पहले बात कर रहे थे, अब सारी चीज़ें साइड पे करके अपनी गेम खेलें। बिल्कुल ऐसी है। हमने ये डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज़ की तो बात की, वकार बहुत ज़्यादा बात करी, बिकॉज इट इज़ रियली सैड टू सी कि एक डिफेंडिंग चैंपियन जो हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू दिस। बट लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश हियर नाउ। बांग्लादेश स्ट्रगल्ड, वो स्कॉटलैंड वाला जो उनको क्वालिफायर राउंड में डिफीट हुई, वहाँ से वो थोड़े शेकी हो गए, और उसके बाद फिर जो श्रीलंका से वो हारे इसी ग्राउंड के अंदर 171 करके भी, आई थिंक देयर इज समथिंग, यू नो, दे ऑफ कोर्स दे आर वरीड, बट आई फील दैट इट्स अ बिट ऑफ अ सैड स्टोरी ऑन दैट एंड एज वेल। दोनों टीमें डिमोरलाइज्ड हैं इस वक्त, लेकिन आई वुड से कि बांग्लादेश बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना गिरी हुई स्टैम्प टीम है, उनको लिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको जीतना है, अगर उनको भी टूर्नामेंट में रहना है, they have to really fix a lot of issues, not only playing but also body language also, because body language is very and poor. I think they rely a lot on Shakib Al Hasan. एक बंदे पे तो नहीं आप रिलाई कर सकते ना। So वो अगर नहीं चलता बैटिंग में तो ये आई सपोज इनकी बैटिंग काइंड ऑफ क्रम्बल्स। So उसी अब उसको नंबर भी उसका लिटन दास कभी चलेगा? लिटन दास को खिलाई जा रहे हैं, वो भी शेर का बच्चा। लेकिन मसला है ना नसीब भाई, उनके पास इतनी चॉइस भी कोई नहीं है। उन्होंने सोनू सरकार को खिला के देखा, वो भी नहीं चला। अब लिटन दास को निकाल के खिलाएंगे किसको? दे डोंट हैव एनीवन। इशू ये है कि पिछले मैच में भी देखा है कि दे वर जस्ट रन आउट हो रहे थे अननेसेसरी, और ऐसे लग रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट ही नहीं आ रही उनको। दे इज वेरी सीजन्ड आल्सो, ये तकलीफ ये होती है। सो दे हैव टू इवन देयर पेसर, you know, they're not really delivering. Spinners are not delivering. Nothing is working at the moment for them. सौम्या सरकार है, वो खिला के बाहर कीता उन्होंने। अच्छा, लेकिन he should have given a chance because वो attacking player है, if he attacks and he can score runs तो why not? and they have to come out with this. उन्होंने बैटिंग में भी रन्स नहीं किए, 124 पे आउट हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, और बॉलिंग में भी बुरा किया है जब वो अगेंस्ट श्रीलंका उन्हें अच्छी खासी मार पड़ी। एब्सोल्युटली। वहाँ हम कहते हैं अक्सर, मिसबा भी ये पॉइंट आउट करते हैं कि चूंकि बांग्लादेश अपनी विकेटों पे खेलने का आदी है, बिग टर्निंग विकेट्स के ऊपर उनको आदत है, स्पिनर ओरिएंटेड खेल उनका जो है वो है बहुत ज्यादा, उनके बल्लेबाज भी स्पिनर्स के खिलाफ वो चले, सब कुछ वो डिस्काउंट हो गया। लेकिन थिंग्स लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट हैज नथिंग टू डू विद द कंडीशन ऑफ द पिच, फील्डिंग एंड कैचिंग बॉल्स हैज नथिंग टू डू विद द कंडीशन ऑफ द पिच। वो तो हर डिपार्टमेंट में यूं लग रहा है कि तितर बितर हो गई सारी टीम। देखिए, जब प्रेशर आ जाता है ना किसी टीम के ऊपर, तो फिर वो ये छोटी छोटी गलतियां करने लग जाती है। बांग्लादेश को हमने देखा, जो पहला मैच वो श्रीलंका से हारे हैं, दे कुड हैव वन इट, लेकिन अगर आप देखें तो दे हैव ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ कैचेस। सो यू नो कि वो कैचेस को ड्रॉप कर देना, उसके बाद लाइक जब बैटिंग आप कर रहे हैं, यू हैव गॉट अ गुड स्टार्ट, आपके 1 और 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन बट यू देन कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। सो यू नो आई थिंक दे प्लानिंग में थोड़ा सा इशू लग रहा है। दे शुड नो हु टू अटैक, करेक्ट, हु टू गिव रिस्पेक्ट, हु टू अटैक, और कहाँ पे दे हैव टू टेक द गेम। अगर उन्हें ये पता है कि उनका साकिब, महमूदुल्लाह और मुश्फिकर पे वो गेम पे डिपेंड कर रहे हैं, सो देन दे हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। So if they have to play accordingly, they should know that any of those two batsmen, if they come onto the crease early, they have to take the game long, knowing that कि नीचे से जाके फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोसिव खेलने की कोशिश करेंगे। और विकेट वो ठीक थी जिस पे इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी विकेट थी जिस पे उन्होंने स्कोर किया। वी हैव सीन इंग्लैंड द वे इंग्लैंड हैव बैटेड, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट, यू नो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। ये चीज़ें तब होती हैं व्हेन यू आर नॉट क्लियर। आपका वो जो प्लान्स हैं वो क्लियर नहीं है, आप अंदर जाते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज है कि हमने क्या करना है। जब आप सोचों में गुम हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे उस सिचुएशन में, रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी ख़राब होती है। दूसरी फील्डिंग की बात है, आई थिंक जब आप 3 कीपर खिलाएंगे और आपके जो 2 कीपर खेल रहे हैं और फील्ड में हैं, वो कोई ऐसे फील्डर भी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम। यू डोंट ओनली जस्ट थिंक ऑफ कि इन्होंने बैटिंग करनी है।
अब 2 फील्डर अगर ऐसे हैं आपके, लिटन दास ने जो कैचेस छोड़े हैं आई थिंक फ्रॉम देयर प्रेशर में आ गए हैं, बड़ा मुश्किल होता है विकेट कीपर के लिए। बहुत कम ऐसे विकेट कीपर हैं जैसे जॉनी बेस्टो हैं या दूसरी दुनिया में जो फील्डर भी अच्छे हैं, बड़ा मुश्किल होता है कीपर के लिए बाहर। मुशफिकुर इनका कीपर था, सडनली ये स्विच कैसे हुआ? बस यही है ना। और दूसरी जो आप देखें कि ये भी एक इनका मसला है कि फिट इन किए हैं आपने 3 विकेट कीपर विदाउट नोइंग के यार वो अच्छे फील्डर हैं, आउटफील्ड में कैसी फील्डिंग करें। दूसरा जो एक और इनका पॉइंट, वीक पॉइंट है यहाँ पे कि लेटर नीचे आके 6, 7, 8वें नंबर पे कोई पावर हिटर नहीं है इनके पास। तो ये बड़ा वो दबी हुई गेम खेल के ज़्यादा से ज़्यादा आप 130, 40, 50 कर लेंगे, उसमें भी अगर आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोई एंड तक चला जाएगा, वरना आपके पास वो फायर पावर नहीं है कि नीचे आके आखिरी 4-5 ओवरों में आप प्रेशर डाल सके दूसरी टीम। वहाँ आप कुछ कह रहे हैं? देखिए आई एग्री विद मिसबा भाई, थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा। अगर उनके पास नीचे 6 नंबर पे हिटर नहीं है तो उन्होंने पहले भी सोम्या सरकार को 6वें नंबर पे खिलाया है। अफीफ जो है उसको आप ओपन करवाएं, जो कीपर है उसको आप बाहर बिठाएं। उससे क्या होगा कि जब अफीफ ऊपर आएगा ही विल हैव मोर चांसेस। असल में वो क्लिक नहीं कर रहा नीचे, ही इज़ एन ओपनर आई थिंक, जो मुझे एग्जैक्टली पता है कि शायद कि वो ओपनर है। यू मेक हिम गो अप द ऑर्डर, उसको कहो यार तुम खुला खेलो, लिटन दास स्कोर नहीं कर रहा, यू ब्रिंग सोम्या एट नंबर 6। वो क्या करेगा जब सोम्या नंबर 6 पे आएगा तो ही इज़ एन एस्टैब्लिश बैट्समैन जिसने बहुत सर्व किया बांग्लादेश को। सो देन दे हैव अ बैटिंग ऑर्डर लाइनअप जिसमें आफ्टर साकिब, मुशफिक और महमूदुल्लाह दे हैव समबडी दे विच दे कैन डिपेंड ऑन। अभी ऐसा लग रहा है कि जो अफीफ है वो भी बेचारा बैटिंग में स्कोर नहीं कर पा रहा और नीचे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है हमारे। लेकिन वहाँ ऊपर तो नईम ने रन्स किए हुए हैं ना, he has scored runs, he has scored 70 in one of the games, only one game है। वो लिटन दास इज द इरेगुलर। आप ये कह रहे हैं तस्किन को खेलना चाहिए कि नहीं विकी? सीरियसली फास्ट बॉलर टेस्टिंग की तरफ देखिए यू हैव टू विकी भाई, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ना। आप मुझे ये बताइए कि ये 3 कीपर हैं, इनमें से किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं? आप मुशफिकर को आप करवाएं, कीपिंग करवाएं आप, और अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए आप स्ट्रगल किधर कर रहे हैं, या आप रन ऑन द बोर्ड नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे 3 स्पिनर खिला रहे हैं। यहाँ पे आप एक फास्ट बॉलर खिलाएं तो सही। आपके पास जो मुशफिकर है, मुस्तफिजर है, और जो दूसरा क्या नाम था आपने लिया था उसका, शोरिफुल, उसको आप जो है वो लेफ्ट आर्म जो है वो 2 एक जैसे है, उनका स्लोअर 1 एक जैसा है, उनकी पेस एक जैसी है। सो यू हैव टू हैव तस्कीन इन द टीम। I just found out that जो है इनका मुस्तफिकुर विकेट कीपर, he refused. He said मैंने कीपिंग नहीं करनी, मैं एज अ बैट्समैन। वैसे वसीम भाई आपको बताऊं, ये जो दूसरा है ना लिटन दास, ये भी रिफ्यूज कर देता है। What is that mean? I was coach in the BPL, और he just refused कि मैं आज मैं नहीं करता, and he doesn't talk to you. बस ठीक है, मैं भी रिफ्यूज करता हूँ फिर मजीद इस चीज के ऊपर बातचीत करने से आगे। With that we're going to go into a break. You're watching the Pavilion on A Sports and 10 Sports. When we come back, more on the other side. Keep watching. It's the ICC Men's T20 World Cup doubleheader coming up. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ब्रॉट टू यू डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वी हैव अ डबल हेडर टुडे। सबसे पहला मैच शारजा से आपकी खिदमत में लेकर आएंगे वेस्ट इंडीज का मुकाबला बांग्लादेश, और फिर दूसरा मैच जिसके लिए हम सब तैयार हैं, बेताबी से इंतजार है, और वो है द रिंग ऑफ फायर। इट इज पाकिस्तान क्लैशिंग विद अफगानिस्तान। विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज। दोस्तों कहानी को लेकर चलते हैं। जो दूसरा मैच है आज शाम का, जो दुबई से हम खेलेंगे, इट इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नाउ ट्रेडिशनली हम जो कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान इज अ बेटर टीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लेट्स नॉट फॉरगेट एंड डिस्काउंट द फैक्ट दैट अफगानिस्तान on 2 previous occasions in the ODIs have given Pakistan a real scare in the World Cup and the Champions Trophy. And so, can they cause an upset? सब लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम इज द डार्क हॉर्स, ये दिन आने पे किसी को भी डस सकती है। क्या आज वो दिन है अफगानिस्तान के लिए, या पाकिस्तान की जो शानदार फॉर्म चल रही है वो चलती रहेगी? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू मिसबा। How do you see this match? I know you are a little concerned. कल रात को जब हम यहाँ पर पोस्ट मैच कर रहे थे तो मैंने कहा जी पिच बड़ी अच्छी है, और आपने कहा फखर भाई क्या करते हैं यार, इसी पिच पे मैच आता तो फ्रेश पिच पे खेलते थे, और आपने उसी वक्त जो है हल्का सा एक दिल का दौरा जो है वो मुझे तो पड़ा था, यकीनन देखने वालों को भी पड़ा होगा। Why did you say that? मुझे भी पड़ा था हल्का सा। बैकफुट पे कर देना, मैं भी बैकफुट पे आ गया। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान खेला है अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2019 जो
वनडे गेम थी, उसमें भी यूज पिच थी। Yeah. और यूज पिच पे ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, स्पिन ज़्यादा होता है। और मेरे ख्याल में दुनिया का नंबर 1 बॉलर जिसको कहेंगे स्पिन बॉलर एट द मोमेंट, राशिद खान, मुजीब, इन दोनों को खेलना, तो पाकिस्तान कैन टैकल देम। जिस किस्म की पाकिस्तान का भी बैटिंग है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में है, बाबर आजम, रिजवान, और फिर नीचे भी जो आपके पास बैटिंग लाइनअप है, हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं, जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ठीक है, 8 ओवर्स इनके हैं, इनको आपने प्लान करना है कैसे हमने खेलना है। आप अगर फ्रस्ट्रेशन में इनके पीछे जाएंगे, इन पे अटैक करने जाएंगे या अजीबोगरीब तरीके से खेलेंगे, इनको विकेटें दे देंगे, तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा। मुझे लगता है कि इनको स्मार्टली खेलना होगा, इनको फ्रस्ट्रेट करें। राशिद को जब विकेटें नहीं मिलेंगी, मुजीब को विकेटें नहीं मिलेंगी, तो वो चांस लेंगे जिसमें आपको रन्स भी आएंगे। विच आई पर्सनली थिंक कि रिजवान, बाबर, शुएब मलिक बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में। ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2013 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का शारजा में जो T20 हुआ था, आमना सामना हुआ था, वो मैच जीता तो पाकिस्तान था, बट आखिरी ओवर में जाके जीता था बस। सो दे एक्चुअली हैव अ टेंडेंसी, इज इट साइकोलॉजिकल? I have a question for both Misbah and Waqar. पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान, मैं कप्तान। आप ही कप्तान। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। अब जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि राशिद और मुजीब को विकेटें ना दें, मगर उनको आप 4-4 रन भी नहीं ओवर कर सकते, तो क्या प्लान होना चाहिए उनके खिलाफ उन 8 ओवर्स का? देखिए, मिल करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आराम से उनको सिंगल्स करें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारें। बड़े शॉट जब मारने जाते हैं इन दोनों को, देन यू आर इन ट्रबल। 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो वहाब ने किया था, कि उसने अटैक कर दिया उस पे, राशिद पे, क्योंकि दैट्स हिज गेम। या क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको नॉर्मल ये मिल्किंग नहीं कर सकता, मुझे आइडिया नहीं बॉल किस तरफ जा रही है, तो बेस्ट वे मेरा जो है वो ये है कि इसको अटैक करो, टांग रख के, टांग खोल के, विच वे द बॉल इज़ गोइंग, वो जो उसको आइडिया है कि थोड़ा सा ऊपर फेंकेगा तो ये अंदर आएगा, उसने अटैक किया अपने तरीके से। बट नॉर्मली हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, रिजवान इज़ गुड स्वीपिंग द बॉल, बाबर कन्वेंशनल खेलता है, थोड़ा सा पीछे बॉल गिरता है, कट अच्छी मारता है, टांग पे मिड विकेट की तरफ वो डजेस करता है, जो सिंगल डबल, और जहाँ भी उसको कोई एक आधा बुरा बॉल मिलता है उसको कैश करता है। सो दैट्स द वे आप खुद किस तरह उसको खेल सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एब्सोल्युटली बड़ा वो इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। लेट्स जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम। लेट्स टॉक अबाउट फ़खर ज़मान हियर। फ़खर ज़मान के जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स, उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, और जो अफगानिस्तान के जो ऑफ स्पिनर्स हैं उनके ऊपर बड़ी बात हो रही है। सो वसीम, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट डू यू थिंक? पीपल आर सेइंग कि क्या हैदर अली को खिला देना चाहिए इस मैच में, नोइंग द फैक्ट कि फ़खर ज़मान बड़ी दफ़ा आउट हुए ऑफ स्पिनर्स के हाथों? No, but Fakhar is one of your main players. I am all for horses for courses, but इस वक्त पाकिस्तान टीम एक हाई पे जा रही है, दे पीकिंग, सो वहाँ पे आके अननेसेसरी किसी को ड्रॉप करना कि वो लेफ्ट हैंडर है, उनको अच्छा नहीं खेल पाएगा, इज एवरी चांस ही माइट नॉट, बट इज चांस कि फ़खर उनसे गेम ही दूर ले जाए जिस तरह का वो प्लेयर है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ के एक मैच के लिए आपने प्लेयर चेंज करना है, आई वुडंट डू इट। स्टेटिस्टिकली मुजीब ने 9 गेंदें की हैं फ़खर ज़मान को, और उसमें 2 दफ़ा फ़खर ज़मान आउट हुए हैं। मोइन अली ने 5 दफ़ा फ़खर ज़मान को आउट किया हुआ है, एंड देन राशिद खान हैज़ अ वेरी गुड गूगली। ये कर सकते हो कि आप फ़खर को 3 की जगह अगर पार्टनरशिप लगती है तो आप शुएब मलिक को ऊपर भेज सकते हो, लाइक यू सेड, वो स्पिनर्स को उतना ही अच्छा खेलता है जितना आई सपोज कोई हैदर अली खेलेगा, बट आपका कम्बिनेशन मेरा नहीं ख्याल चेंज होना बनता है। तो शुएब मलिक इन कमाक 6 में विकेट नहीं गिरी, अगर साथ में आपका इंशाल्लाह अगर 65 लगा हुआ है तो then he can come up if you think if Hafiz or either Hafiz 3 पे आ सकता है, so you can always just change according to the situation. बिल्कुल ऐसे ही है। Now let's talk about the Afghanistan bowling attack, especially their spinners, Waqar. Their spinners are fantastic. I mean, their records are amazing. Rashid Khan, one of the youngest with the highest wickets in T20 format. नहीं, राशिद की 79 विकेट सिर्फ UAE में है, जी, सिर्फ 15 की एवरेज से, so he loves bowling there. So that's his favorite wo. Then you've got Mujibur Rahman. He's amazing. He's coming off the back of an IPL with a lot of experience that he's got. And then of course there's Nabi, who you can never discount either.
एज वेल। और नबी की एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जब बॉल करते हैं टू लेफ्टीज तो 15 की इकोनॉमी रेट है वर्सेस राइट हैंडर्स 40 चढ़ जाती है उनकी इकोनॉमी रेट, बट ही डज गेट विकेट्स फॉर दैट। इज दिस अफगानिस्तान स्पिन अटैक बेटर देन मे बी द इंडियन स्पिन अटैक? आई गेस सो। आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज और काफ़ी देर से इकट्ठे खेलते हैं और तीनों को बॉलिंग आती है और डिफरेंट कंडीशंस में बॉलिंग करनी आती है, डिफरेंट सिनेरियोज में बॉलिंग करनी आती है। मुजीबुर रहमान नया बॉल करता है एंड ही इज़ वेरी वेरी टफ टू हैंडल, एंड देन नीचे जब राशिद आता है तो इट बिकम्स इवन हार्डर। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई पे है, दे प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। आई डोंट थिंक पाकिस्तानी बैट्समैनों को इवन सोचना भी चाहिए कि राशिद या मुजीब और ये दे शुड प्ले द नेचुरल गेम, दे शुड जस्ट नॉट वरी, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि जी उनको भी आराम से खेल लो, उसको भी आराम से खेल लो और नबी को भी आराम से खेल लो, तो ये 12 ओवर तो निकल गए ना ये। सो यू कांट डू दैट, यू कांट जस्ट कीप मिल्किंग, यू हैव टू बी अटैकिंग। वी आर, जो हम अभी तक इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं, आप देखें तो जिस तरह रिजवान खेल रहा है, जिस तरह बाबर खेल रहा है, वी बीन एन अटैकिंग टीम। सो आई डोंट थिंक वी शुड जस्ट बी स्मार्ट। आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल ही मुंह उठा के नहीं, लेकिन ये नहीं करना कि अपनी जो स्ट्रेंथ से हट जाना। व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ? आवर स्ट्रेंथ इज़ फास्ट बॉलिंग। हम लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सो वी हैव गॉट बॉलिंग रियली गुड एट द मोमेंट। आवर 2 openers are in a very good form. Let's keep doing that. Keep doing. I think we got enough batsmen in the team to handle these situations. कि 1-2 चौके छिक्के लगेंगे, you will see कि they will go all over the place. कप्तानी की अगेन, मैं बार-बार ये रिमाइंड करा रहा हूँ उसको, PSL में पेशावर के फाइनल में आप लोग पहुंचे थे। सो जज़ाई, उसके लिए क्या पहले 6 ओवरों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली नया बॉल तो वही करेगा, पहला ओवर आई सपोज करना चाहिए, वो इमाद को तो कराएंगे नहीं। तो व्हाट यू थिंक हफीज़ को कराया जाए एक आधा पहले 6 में? और कुछ करें ना करें, मिड विकेट पे फील्डर जरूर रखें। इवन ऑफ स्पिनर के लिए मारता ही उधर है। देखिए ज़ज़ाई एक अंदर रखे तो एक छाते भी रखे, जिस तरीके से मारता है ऑनेस्टली। ज़ज़ाई नेचुरली ही इज़ अ वेरी अटैकिंग प्लेयर। आई नो, और मैंने उसको ये देखा है कि ही हैज़ चेंज्ड हिज गेम बिकॉज ही वाज आउट ऑफ द टीम फॉर लाइक अफगानिस्तान टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कई लीग्स में भी ही वाज नॉट प्लेइंग। सडनली ही केम इन द PSL एंड ही मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट। फॉर मी एज अ बॉलर आई वुड से कि जिस तरीके से शाहीन का स्विंग होता है, आई थिंक ही शुड कम इन एंड बोल हिम अप फ्रंट स्ट्रेट अवे, ट्राई टू गेट हिम आउट, क्योंकि शाहीन का स्विंग होता है एंड इट्स हार्ड फॉर हिम टू मैनेज स्पेशली द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम। सो दैट इज़ वन चांस। अदरवाइज हफीज़ भाई को करवाया जा सकता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी अ प्रिडिक्टेबल बॉलर। उसका एक एरिया बहुत अच्छा है जिसमें व्हेन यू कम टुवर्ड्स हिम, जब आप उसको विकेटों के अंदर बॉल करने जाते हैं, ही हैज़ दैट पिकअप शॉट जो मिड विकेट पे मारता है, और वो उसके बाद स्क्वायर लेग वगैरह पे वो उसकी रेंज बहुत अच्छी है। पिछली बॉल पे कैसा है? पिछले बॉल पे आई वुड रादर से कि यू शुड अटैक हिम एज अ बाउंसर। ही शुड नो द बाउंसर इज कमिंग। स्क्वायर लेग बैक, हैव स्क्वायर लेग और मिड विकेट बैक है। एक फील्डर, पहले 6 की बात कर रहा हूं। 6 की बात करें तो उसमें यू कैन प्लान, यू कैन ऑलवेज हैव दैट स्क्वायर लेग फील्डर बैक। फाइन लेग अप and test him for the bouncer, give him that message कि bouncers are in play. coming. थोड़ा सा ऊंचा और थोड़ा सा ऊंचा हेड हाई पे उसको होना चाहिए, ताकि वो इधर से मारो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर से, कि उसको यहाँ से लेना पड़े। क्या होता है जब हम बाउंसर थोड़ा सा लेग स्टंप पे करते हैं, हम बैट्समैन को बीट तो कर देते हैं, लेकिन वो टॉप एज फाइन लेग ऊपर होने की वजह से इट गोज। सो आई थिंक ही शुड नो दैट वी आर कमिंग एंड वी आर अटैकिंग यू, क्योंकि हमने उसके खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेला था 2019 के वर्ल्ड कप में। दैट वाज 50 ओवर्स गेम एनीवे, बट ही वाज ऑन टू अस लाइक एनीथिंग। वो बस हमें मारता ही जा रहा था। यू नो, स्लोअर वन भी इफेक्टिव है, बट जिस तरीके से उसने पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला ना वसीम भाई, मैंने उसको इस तरह खेलते भी नहीं देखा कि वेटेड। हालांकि एक मैच था जब हम इस्लामाबाद के अगेंस्ट 170+ चेस कर रहे थे, उसने पहले 5-6 ओवरों में ही वाज़न्ट दैट गुड, उसको अटैक नहीं किया। इस्लामाबाद आया, उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग करते रहे, बट ही पिक 2 बॉलर्स, और उसके बाद जब वो बाद में बॉलिंग करने आया तो ही स्कोर्ड ऑल द रन्स ऑन टू हिम। सो ही इज समबडी के आपको अप फ्रंट इसको अटैक करें, स्टंप्स में स्ट्रेट अवे चांस दें स्विंग करने का, क्योंकि स्विंग होगा। अगर स्विंग नहीं होता सो ही शुड डेफिनेटली दो दैट वी आर अटैकिंग यू, नॉट कि वी आर ट्राइंग टू गेट आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम यू। हम बचने नहीं जा रहे, हम आउट करने जा रहे हैं। So that will make a difference impact on it. I like that theory. Yeah, that's a good idea. That's a good way of going about it. Pakistani openers की भी बात कर लेते हैं. Now, Babar Azam has a 18 average against Rashid Khan, and Rizwan has never played Rashid Khan, and we are all worried about Rashid Khan.
नो आई सपोज उस लेवल पे फ़खर लड़कों ने ऑफ कोर्स वीडियोस उसका सब कुछ देखा होगा, बॉलिंग एक्शन देखा होगा, उनके इर्द गिर्द बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं टीम में, हफीज़ है, शुएब मलिक है, वो बताएंगे उनको कि ये बॉलिंग करता है। जैसे अगर इसको पता है कि जब वो थोड़ा छोड़ता है सो वो बॉल राइट हैंड को अंदर आती है, वो गुगली होती है, और जब थोड़ा तेज़ होता है वो इधर लेग ब्रेक होता है उसका। सो ये चीज़ें तो फिर पाकिस्तान टीम को पता होगी ना। इंटरेस्टिंगली आज एक पीसीबी की वीडियो आई है, डिजिटल रिलीज, वहां सॉरी मैं इंटरचेक कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सकलैन मुश्ताक एंड शादाब बाबर को स्पिन की प्रैक्टिस करवा रहे थे नेट के अंदर, यू नो, करते सकलैन वाज बॉलिंग, यस एब्सोल्युटली। देखिए दूसरा ये है कि हम अगर रिजवान की बात करें, वी शुडंट फॉरगेट कि रिजवान इज अ विकेट कीपिंग बैट्समैन हु स्कोरिंग रन्स अ लॉट, प्लस एज अ विकेट कीपर वो शादाब को भी कीपिंग करता है और भी बड़े लेग स्पिनर्स को वो कीपिंग करता है डोमेस्टिक में। सो ही माइट हैव दैट आइडिया कि उसकी गुगली और उसके लेग ब्रेक में क्या फ़र्क है। एंड आई थिंक रिजवान विल बी समबडी टुडे जो कि की होगा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ही कम्स इन एंड ही अटैक्स द स्पिनर्स, स्पेशली स्वीप्स खेलता है, सो ही डजंट वांट द स्पिनर्स टू सेटल डाउन। तो अगर वो उसके लिए स्वीप और मिड विकेट रख लेंगे फॉर इंस्टेंस स्पिनर्स, सो ही आल्सो प्लेज इनसाइड आउट रिजवान, एम आई राइट? बहुत अच्छी मारता है वो उसकी गो टू शॉट, एक्स्ट्रा कवर मारता है, सामने मारता है निकल के। देखिए हमने ये कल डिफरेंस देखा है हसरंगा और उसमें जो महेश थे, हमने उनमें ये देखा है कि जब थोड़ा सा स्टार्ट मिला है वार्नर और उनकी तरफ से, तो वो जो स्पिनर्स हैं उनके बॉल बनिस्बत के वो थोड़ा सा आगे अपनी जगह पे पिच करके टर्न और उसको करने खेलने जाते हैं, उनके बॉल ज़्यादातर शॉर्ट हुए हैं। सो एज अ बैट्समैन, जब बैट्समैन किसी भी बॉलर पे अटैक करता है तो बॉलर के बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि ही इज़ अटैकिंग मी, सो ही इज़ अनसर्टन ऑन हिज लेंथ्स। और हमने जिस तरह रिजवान को देखा है, दैट इज द की, दोनों की, हाँ, और दैट इज द की, और यही फ़र्क है। और रिजवान क्योंकि आते साथ स्पिनर्स पे अटैक करता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा खेले हैं। चक्रवर्ती को हम कह रहे थे कि ये मिस्ट्री स्पिनर है, ठीक है, बॉल गीला था, ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा, बट आप ये देखें कि वो जैसे ही वो उसने बैक फुट पे बॉल किया है, बोथ बाबर एंड रिजवान दे वर ऑन टू देयर पोजीशन, और उसको कट भी खेला और उसको मिड विकेट पे भी शॉट्स मारे। एब्सोल्युटली, रियली ग्रेट। So I think Rizwan will be the key, and I don't think Babar or Rizwan will be under pressure. But all they know is that Pakistan need a good start. So दोनों की जो स्पेशल चीज़ है वो यही है कि their footwork is very good. Against spinners बड़ी जल्दी वो बैक फुट पे जाते हैं, इवन फास्ट बॉलर्स से अगेंस्ट तो उनका फुटवर्क अच्छा है ही, लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट भी आपने देखा कि ज़रा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, जैसे कल हमने डेविड वार्नर को देखा, बहुत जल्दी पिक करते हैं। बाबर ने 1-2 छक्के मारे मिड विकेट की तरफ, रिजवान ने बहुत अच्छा वो जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गैप है उसको बड़ा ज़बरदस्त बीच में खेलते हैं। तभी आप कर सकते हैं कि जब आप फ्रंट फुट पे कमिट ना करें, यू आर वेटिंग, और बड़ी जल्दी आप लेंथ को पिक करें, बड़ी जल्दी उसकी पेस को पिक करें कि हाँ मैं बैक फुट पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। इनकी फीट मूवमेंट मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए ये बड़े आराम से फिटनेस से भी आती होगी। इफ यू आर फिजिकली फिट, आपकी मूवमेंट भी आई सपोज एक तो नेचुरल होती है, फिर एक बिल्कुल वसीम भाई ये तो की है, फिटनेस की है। और दूसरी जो मैं हमेशा से यहाँ पे इस शो में भी कह रहा हूँ कि आपने एज अ बैट्समैन पहले से कोई चीज़ माइंड में नहीं बिठानी कि मैं आगे जाऊँगा, पीछे कमिट नहीं करना। आपने एक पोजीशन बनानी है। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट योर रेडी पोजीशन, पावर पोजीशन एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, उसमें जाना है, एंड देन यू सी द बॉल एंड रिएक्ट। अगर आपके जहन में है कि गुगली ना हो जाए, स्पिन ना हो जाए, मैं पहले आगे चला जाऊँ, देन यू आर स्टक। पीछे बॉल गिरा गया भी तो आप बड़ी मुश्किल से उसको कहीं ना कहीं फील्डर के हाथ में मार देंगे, सिंगल करेंगे। बट बैट्समैन जिसके पास टाइम होगा, जल्दी मूव करेगा, वो उसको छक्का मार देगा या चौका मार देगा। ऑन अ लाइटर नोट आई फाउंड आउट कि जज़ाई ने PSL में जो उसने स्कोर किए थे, छक्के मारे थे, उसने कहा इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं छक्के इसलिए मारता हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट बड़ा खाता हूँ। ड्राई फ्रूट तो बांदर भी बड़ा खाता है। नहीं, लेकिन एक और चीज़ है, देखिए ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान को ये पता है कि जो उनका फर्स्ट 6 ओवर्स में जो उनका अटैकिंग बॉलर है वो मुजीब है, और अगर आप मुजीब के 2 ओवर उसको विकेटलेस निकाल देते हैं, सो ही इज नॉट दैट मच इफेक्टिव इन द after the power play. All right, we're going to bring an end to this power play. We're going to take a break right here on the pavilion, and we'll be right back. You're watching A Sports and 10 Sports. Our coverage of the ICC Men's T20 World Cup continues on the other side. Keep watching.
वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशियात द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमारात से। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान, जो आज का दूसरा मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आपके लिए लेकर आएंगे। तो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बाद में हमें टाइम नहीं मिलता दोनों मैचेस के बीच में। पहला मैच जो है वो बांग्लादेश बामुकाबला वेस्ट इंडीज है। दोनों टीमें जो है वो इस वक्त जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी क्योंकि दोनों टीमों के 0 पॉइंट्स हैं। दोनों ने दो मैचेस खेले, दोनों दो मैच हारे हुए हैं। सो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट ओवर देयर एज वेल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़ाज़ई की बात की, वो किया एक आपके पास कराची किंग्स में जरदान भी खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो करते हैं। उनके बारे में ज़रा थोड़ा वसीम हमें और बताएं कि उनको कैसे संभाल लें। आई मीन ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैं उसको जानता हूँ तब से, जब वो आई थिंक आज से 3-4 साल पहले मैंने 1-2 साल कोचिंग किया था उसमें T10 लीग में। आई मीन इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन बट ऑल्सो ही कैन एक्सेलरेट व्हेन ही वांट्स टू। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कवर भी मारता है। अपनी लेफ्ट आर्म स्पिनर को, लेफ्टी, नॉट अ बिग गाय बट रिफ्लेक्सेस काफ़ी तेज़ हैं उसके। अनदर डेंजरस प्लेयर in Afghanistan side. अब इसका strike rate is 143 and that's an average is 30. So that's so Vicky कहते हैं 170 मिला के average और strike rate, so he's over and above that. Yeah, absolutely. You can see that आपकी स्क्रीन पे नजर उसका आ रही है। एक है कि ये he starts off very well, plays good inning, but suddenly sometimes he plays a silly shot. I hope today is that day. I hope so too. आई थिंक आज जो अफगानिस्तान की टीम नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि हफीज़ का काम, हफीज़ का जॉब जो है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको नया गेंद भी कराया जाए ज़ाई की वजह से, विद शाहीन and maybe in the middle also, because इनके जो लेफ्ट हैंडर हैं they are dangerous customers, so you know Hafiz's job is going to be very crucial. Yeah, he is. I think Hafiz भाई की जो bowling है, Professor in action on your screens right now. He's amazing, isn't he? He's just over the years, I mean, he went through a lot. But अगर आप कहते हैं ना, जो वसीम भाई कहते हैं ना कि जी वो एक coin रख दो या सिक्का रख दो तो मैं बॉल फेंकूंगा, Hafiz is one of those bowlers जो उस सिक्के पे बॉल कर सकता है। Okay, that accurate, that much Yeah, control. He is very accurate, or just subtle changes in the wrist to bring the ball in. Sometime मुझे लगता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता, to be very honest. लेकिन वो इतने अच्छे एरिया में और इतनी अच्छी जगह पे फेंकता है कि all you need is one to turn और शक पड़ जाता है बैट्समैन को, ये स्पिन भी करता है, and then you're done because others don't hardly spin. Yeah, I've also noticed Misbah के when Hafiz is bowling to right-handers, वो width देना पसंद नहीं करते. He keeps it really either middle and leg stump, and he is consistently bowling there with his field packed on the onside. Yes, I know. I think the idea is कि आपके बाजू ना खुलें, क्योंकि जैसे ही आपके बाजू खुलते हैं ये तो आप ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं और आपके लिए इजी होता है सामने मारना। कोशिश करता है क्रैम्प करे और फिर पेस वेरिएशन करता है, लेंथ थोड़ी सी जो है वो उसको वेरी करता है बैट्समैन को मुश्किल में डालने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट हफीज़ बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट। बहुत ज़बरदस्त पेस वेरिएशंस, लेंथ, और सबसे जो बड़ी चीज़ है हफीज़ की वो ये है क्योंकि वो बैट्समैन के दिमाग से सोच रहा होता है कि what exactly batsman is going through at the moment, situation of the game, अब ये क्या करेगा, क्या सोच रहा है, बड़ी शॉट मारने जाएगा, सिंगल सोच रहा है, so that gives him better idea कि कौन सा बॉल मैंने करना है। Intellectually very engaged in a game of cricket. इसीलिए तो प्रोफेसर कहते हैं उनको। सेम होता है ऑलमोस्ट बैट्समैन होगा, तो आप एज ए बैट्समैन सोच सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें बैट्समैन क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा है। वसीम भाई ने जो 1000 विकेटें ली हैं वो क्या सोच के लिए? फिर आप तो बैट्समैन नहीं थे। देखिए वसीम भाई के पास जो स्किल थी, अब हफीज़ और वसीम भाई डिफरेंट। वसीम भाई जैसे शाहीन आजकल कर रहा है, बैट्समैनों के पास सारा स्किल है, अंदर के बॉल की प्रैक्टिस भी करके आते हैं, बट स्टिल वो पहले 1 ओवर में या 2 ओवरों में वो 2 ले जाता है। अच्छा, अभी तक 90% गेम्स इन दिस ICC T20 वर्ल्ड कप में won by teams batting second. Yes, So interesting. that's the trend so far. We have been saying all along. So now this is, hold on a second, we'll get to that in a minute.
अभी आप ये कह रहे हैं कि जी बैटिंग सेकंड इज बीन द ट्रेंड। या अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। हाँ। वुड यू लाइक टू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि वो अगर आप 150-60 कर देते हैं तो उनके पास जो आप कहते हैं ना जी 12 ओवर या 13 ओवर स्पिनर्स के हैं, या तो डोंट यू थिंक वो मसला हो सकता है बैटिंग सेकंड में? पहली में तो शायद ना हो क्योंकि आप बैटिंग सेकंड में यू ओनली होप के हल्की सी ड्यू पड़ जाए ताकि उनके गेंद पे इतनी ग्रिप ना आए। अगर पिच ड्राई रहेगी, ड्यू नहीं पड़ेगी तो वो So trouble that takes us देंगे to उनकी। yesterday's game. We Yeah. didn't see much dew, by the way, and we're playing on the same pitch. पिच भी यूज्ड है। पिच भी यूज्ड है। मिसबाह ऐसे ही जो है ना शक उन पता नहीं बल्लेबाजों पे शक पड़े ना पड़े, हमारे दिमागों में शक जरूर पड़ गया। डराता भी मिसबाह है। के एक डरा के कि डराता पिच है। जो है वो यूज्ड है, पिच जो है वो यूज्ड है। वसीम, What is this? आपका पर्चा मिसबाह को आगे पकड़ा दीजिए। कल मिसबाह हारे हुए हैं, याद रहे। वकार भाई आपका, वहाब भाई आपका, ये आगे वहाब को दे दें। अपने अपने स्कोर्स पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के लिख दीजिए और लिख के मेरे हवाले कर ये दीजिए। अफगानिस्तान को हम कैसे प्रिडिक्ट करें? अब यही तो सारा खेल है सारा। सिर्फ पाकिस्तान का स्कोर प्रिडिक्ट नहीं, आप मैच के जो भी टारगेट होगा सेट होगा। क्या टॉस के बाद कर लें? नहीं, We can टॉस do के it साथ- after the toss. नहीं, ये आप मुझे अभी देंगे यहाँ पर, I ये think सबके I सामने। think it's better Second off match after है। the toss. अच्छा चले, जब टॉस तो बाद रात में को ना हम second- लोग ऑन एयर होंगे नहीं जब टॉस हो रहा होगा ना, हाँ, प्रॉब्लम ये है। लेकिन एक चले सवाल आ जाता है इससे, विन द टॉस एंड डू व्हाट? मिसबाह, आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। Yeah. आप जानते हुए कि ड्यू फैक्टर हो सकता है क्योंकि पिच को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, बट आई थिंक पाकिस्तान को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की है। बॉल फर्स्ट और उनको कोशिश करें, अटैक करें उन पे, उनको कोशिश करें कम से कम स्कोर, जो कि मेरे ख्याल में लेस देन 150 है, 125-30 इसमें पकड़ने की कोशिश करें उनको, and then just chase it down. thank you. Wasim score is in with us. I have written Pakistan batting first and Pakistan chasing both. प्लस ना लिखी, पूरा लिखी। नहीं, उससे नंबर नहीं दिया उसने कहा पहले you अगर make it बैटिंग करते हैं difficult? नहीं करते। क्या लिखना लेकिन है? जी, मुझे क्या क्या पूछ मैंने रहे हैं दोनों आप? का लिख दिया। आपने उसका पाकिस्तान का अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं और पाकिस्तान का चले, अगर बैटिंग exactly. लिख दिया लिख मैंने। दिया आपने भी, ठीक है, आप भी दे दोनों दें। का लिखना है? दोनों का लिख दें। चले, अगर वो बैट करते हैं फर्स्ट से वो करते हैं, उसमें भी देखें कौन कितना एक्यूरेट है। सूरत हाल इस तरीके से है कि ये दूसरा मैच है पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान का, और बड़ा ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कांटे का मुकाबला होगा और इट शुड बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। बट डोंट फॉरगेट कि बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का भी बड़ा ही क्रिटिकल मैच है जो शारजा से पहले हम देखेंगे। उसका स्कोर वैसे पूछ रहे हैं। उसका क्या, आपको क्या लगता है वहां? वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट 175 176. ओके, एंड Bangladesh bat first 156 157. वाओ, दैट्स अ गुड प्रेडिक्शन फॉर यू वसीम। वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट। तोते ना रख लें दो चार, दो चार बाहर बैठ के पुल के नीचे यही काम करते हैं। एक मैच का कर Not a दिया। bad idea. We are here for like 6 hours. nothing. उससे वजह भी ढूंढ लिए कि why we should do this। वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट 200+. हैं जी? ओए 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 कम जय अग्रेसिव। अमीदा चल गया। चल गया। ये दोनों को 9 ही देने को एक ही चलेगा। All right. So this is it. Let's go back to the West Indies team now. Pitch report तैयार है. Let's go for the weather and pitch report to Sharjah. Well, thank you, Danny. There, you got to be aiming at those stumps to be winning. Interesting concept. Introduced by I Danny suppose, Morrison. I mean, concept से मुराद के वो पिच ऐसी है कि स्पिनर्स कोशिश Ball करते within. हैं कि विकेटों में ही खत्म करें, बट नोइंग वेस्ट इंडीज दे डोंट बिलीव इन सिंगल्स इवन ऑन अ बिगर ग्राउंड्स। Yeah. तो यहाँ पे तो वैसे ही दुक्का मुश्किल है बिकॉज ग्राउंड थोड़ी छोटी है। सो दे आई थिंक they will go all guns blazing either way. Either way, they are going to go all guns blazing. What do you think? ये जरा पिच पे नजर डाल लेते हैं। आज हमारा ड्रोन पहुंच गया शारजा, तो ये रहा जनाब जी, ये रही पिच। ये पिच तो मैं देखे बगैर बता सकता हूँ क्या पिच है भाई। इस पे क्या बता सकते हैं? लुक्स ओके, लुक्स द बिट ऑफ शीन इन देयर, क्रैक्स नज़दीक हैं, दूर दूर नहीं है, बट जो यहाँ से लग रहा है, टीवी पे लग रहा है कि इस पे डेफिनेटली इवेंचुअली बॉल थोड़ा बल्ले पे इतनी आसानी से आएगा नहीं। Am I right, guys? मिसबाह, अब यहाँ से बैठ के इतना ज़्यादा वैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली स्लोअर साइड It's a पे new है। pitch, remember? जी, स्लोअर साइड पे डेफिनेटली ये होता है पिच, बट मुझे नहीं लगता कि टर्न कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं शारजा में। स्लोअर साइड पे होता है, बट वेस्ट इंडीज़ आई थिंक विल बी हैप्पी इस ग्राउंड में, इस पिच को देखते हुए। इधर there's a Fresh toss pitch. match. He said fresh pitch. Gee, it is a fresh pitch. It's a new pitch. Now, also, one. this is a day game, so the dew factor really doesn't come into play. What
do you think would be the strategy of both the captains, win the toss and do what on that pitch? Because it will slow down from traditionally जो हमें पता है शारजा के बारे में. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर तो वेस्ट इंडीज टॉस जीतेगी तो दे विल बैट फर्स्ट. दे विल से ओके वी गोना शो यू गाइस, दे आर गोना शो द वर्ल्ड दैट व्हाट वी मेड ऑफ. आई हैव अ फीलिंग. Bangladesh, I feel that they'll probably look at you, okay, let's ball first, try to get them. So I have a feeling that West Indies batting करेगी in any way. पिच फ्रेश तो लग रही है लेकिन इट्स अ टिपिकल शारजा पिच. आई मीन थोड़े बहुत क्रैक्स हैं, शीन थोड़ी नजर आ रही है. आई होप कि वो वाली पिच ना हो कि जहाँ पे बॉल बिल्कुल रुकना शुरू होता है, 130-35 वाली पिच. यू वांट टू सी like a high scoring game. अच्छा, I have a question. आज You वकार guys has completely changed because all he's been saying from the word go कि ये बैट्समैन का टूर्नामेंट होता है और ये देखें कि ज्यादा मजा नहीं आ रहा, सिर्फ 140 हो रहा है. अच्छा, शारजा में आप लेकिन पाकिस्तान फास्ट बॉलर को भी कोई हेल्प क्रिकेट के लिए तुम लोगों ने रीसेंट पास्ट में वहां पे ये कुछ ट्राई क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा घास छोड़ के विकेट बनाएं? ये बिल्कुल गंजी क्यों कर देते हैं? बिकॉज यू कैन सी द ग्रास ऑन द स्क्वायर. आई नेवर सीन पिच ऑन शारजा जिस पे घास रखी हो. भाई कभी कभी वो रोल्ड इन ग्रास कर देते हैं. समटाइम्स वो रोल कर देते हैं अंदर घास ऊपर डाल के ना, नॉट द वन ग्रोइंग वन, नहीं जो डेड ग्रास डालते हैं और वो उसको ऊपर रोल टाइप वो रोल कर देते हैं. या वो लेकिन सलाद के पत्ते घास काट के चढ़ा करके ऊपर रोल कर देते हैं. क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जब भी घास छोड़ा गया ना, बैक इन द 80s आई एम टॉकिंग, जब रिमेंबर इमरान भाई पिक्ड अप 6 विकेट्स इन वन ऑफ द इंडिया गेम, एक दफा 6 for 14 वहाँ ये हो जाता है. फिर मसला ये होता है कि अगर वो घास छोड़ देते हैं इट बिकम्स अनप्लेएबल. 125 पे इंडिया को आउट किया. आई वाज यंग 19-year-old kid and I was very happy. 125 पे आउट कर लिया इमरान भाई 6 for 14 पे. आप 87 पे आउट हो गए. यही मैं स्पिनर आउट कर गए. स्पिनर. टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, बांग्लादेश कैंप से हिरात हमारे साथ मौजूद हैं. ही इज द स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट फॉर द बांग्लादेश टीम. लेट्स लिसन इन. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से. और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. अगर आपको लगता नहीं है कि ये बंदा ये जो मेरे लेफ्ट में बैठा है ये दिन ब दिन बदतमीज होता चला जा रहा है? मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं की उसने. आप अभी जब आप ब्रेक से वापस आए हैं, व्हाई वर यू लाफिंग? गो ऑन, टेल अस. बिकॉज वहाब ने बोला कि आपके कपड़े जो है लग रहा है कि हमें क्यों इतने अच्छे कलर्स दिए हैं वसीम भाई ने और आपको ये चौकीदारों वाला. नहीं, आई करेक्ट. मैंने ये बात नहीं की चौकीदारों वाली. मैंने कहा कि सबको अच्छे कलर वसीम भाई ने बनवा के दिए हैं. वाई वकार भाई इज इन ब्राउन? बिकॉज यू नॉट गेटिंग जो टीम की बात कर रहे हैं, यू नॉट गेटिंग इट. आई एम गेटिंग 3 more. You have done the right thing. एक मिनट ये जरा वसीम भाई का जरा क्लोजअप दिखा दीजिए. 3 वो बॉस क्लेम आ गया 3 का इधर. ये आप इसके ऊपर फोकस करें. 3 का क्लेम आ गया 3 का. मिल जाएंगे विकी को 3. विकी को क्यों भाई? वसीम भाई वाई वकार भाई इज वेयरिंग. ये दोनों विकी हैं. कौन से वाले विकी को? एवरीबॉडी इज वेयरिंग ग्रे और डार्क ग्रे. 2025 में दे दूंगा 2025 ना देना नहीं मिल रहा. इतना देना नहीं कर ले बेसिकली. ऐसा ही माहौल है दोस्तों. 2 मैचेस आपकी खिदमत में पेश करेंगे. सबसे पहला शारजा से आप देखेंगे बांग्लादेश बामुकाबला वेस्ट इंडीज. इट्स अ मस्ट विन फॉर बोथ टीम्स. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लैश. और उसके बाद दूसरा मैच फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर इन दुबई. वी विल बी शोइंग यू लाइव पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान. हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की बात कर ली. वापस अब बात करते हैं बांग्लादेश वेस्ट इंडीज की, क्योंकि अब से कुछ लम्हों बाद हम आपको बराह रास्त लेके जाएंगे शारजा, जहां पे दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होंगे. मिसबाह, नाउ इंटरेस्टिंग, वी सीन द पिच हमारे सामने है. मुझे गोया बाउंड्रीज की आज समझ में नहीं आई, क्योंकि बाउंड्रीज की जो उन्होंने डायमेंशंस दी, उन्होंने कहा दिस साइड. डैरन सैमी की ऑन अ गुड डे समझ नहीं आती तो वैसे कर. तो वो तो खैर वो नहीं गई. एक साइड पे बाउंड्री गालिबन, अब वो कौन सी साइड है ये मुझे नहीं पता, वो जरा बड़ी है. इतना ज्यादा फर्क नहीं है. हाँ. So we know the pitch, we know the situation, we also know the situation for both the teams. Psychologically, they are a little demoralized. It's a must-win game for them. So what you said, the team जो टॉस जीते क्या करे? इंटरेस्टिंग होगा. सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. ओवरऑल जो स्टैट्स हैं 10 मैच में से 9 चेजिंग में जीते हुए, और डे मैच है. बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है वो पहले बैटिंग करते हैं. इट विल बी इंटरेस्टिंग. वेस्ट इंडीज़ भी अब 2 मैच हारी हुई है पहले बैटिंग करके. मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करेगी, चेज़ करेगी.
बांग्लादेश उनका आइडिया नहीं है कि वो क्या सोचेंगे। लास्ट 2 मैच उन्होंने बैटिंग पहले करके हारे हुए हैं और उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी आज चेस पे चले जाएं। वकार, क्रिस गेल और कितने साल खेलेंगे अब वेस्ट इंडीज के लिए? I honestly don't know the answer. I mean, मुझे तो ये था कि साल 2 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, but they made him come back. Yeah, but match winner है ना, that's how he plays. He struggles in the field. We all know that. प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज हैं। लॉन्ग रन में आई मीन ही वाज अ ग्रेट ऑफ द गेम, स्पेशली इस फॉर्मेट का। टेस्ट में भी उसने 300 किया हुआ है, 333 और समथिंग। बट नाउ काइंड ऑफ एट टाइम्स ये T20 आजकल के दौर में फिटनेस, फील्डिंग इज सो क्रूशल। ही इज काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ लायबिलिटी एट टाइम्स। वसीम भाई, अभी पिछले दिनों इसने कर्टली एम्ब्रोज के साथ भी एक काफ़ी इश्यूज का हो गया था, क्योंकि कर्टली एम्ब्रोज ने क्या कह दिया था कि यू आर नॉट अ ऑटोमेटिक चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सो व्हाई एज अ प्लेयर व्हाई आर यू जस्ट सो एंग्री एंड सो अपसेट विद हिम? ही इज जस्ट गिवन हिज ओपिनियन। या और उसका ओपिनियन ठीक था। वो देखे ना, उसकी फॉर्म भी देख लें। अभी रिसेंट अभी पिछले दिनों कोई ख़ास नहीं लग रही। रनिंग बिटवीन द विकेट तो पहले नहीं था करता, और फिर फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग पे जहाँ भी खड़ा होता है 19-20 हो तो 2 हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ थिंग ही इज़ अ मैच विनर स्टिल, सो गुड लक टू हिम एंड वेस्ट इंडीज़ बोथ, आई सपोज। या एब्सोल्युटली। वहाब, फॉर बांग्लादेश क्या कॉन्वर्सेशन उनके कैंप में चल रही होगी? बिकॉज अभी आपने सुना था रंगाना हराज उनके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट है, कोच हैं, वो भी कह रहे थे कि देयर इज नाउ मस्ट विन सिचुएशन, डू और डाई फॉर देम। और उससे पहले जब हम आंड्रे रसल का इंटरव्यू सुन रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि अब हमारे लिए तो हर मैच फाइनल है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टू प्ले। देखिए, डू एंड डाई मैचेस बिल्कुल हैं, और रंगना ने बिल्कुल सही बात की है। उसने यही कहा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। उन्होंने कहा जो हमारी जितनी हम जिस जगह पे हम खेल रहे हैं या जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें उसके बीच में ही उसी का कोई हल निकालना है। उसने ये भी बात की कि पहले 6 ओवर्स और उसके बाद जो बीच में हमने उसे कैसे लेके चलना। सो दे आर मोटिवेटेड, ऑब्वियसली दे हैव टू प्रूव अ पॉइंट एज वेल बांग्लादेश है, बिकॉज स्कॉटलैंड से हार जाना, दैट इज़ समथिंग दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग आफ्टर विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और सडनली यहाँ पे आके दे वर, आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, और एक छोटी एसोसिएट टीम से वो हारे, और उसके बाद कंपटीशन में पहले 2 मैचेस भी आ गए। सो दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव, एंड आई से कि वी माइट सी सम चेंजेस टुडे, बिकॉज दे जो बात अभी रंगना ने की है, बिकॉज ही इज़ देयर बॉलिंग कोच, सो ही इज़ टेलिंग देम के, या उसने ये एक्सप्लेन किया कि विद इन देमसेल्व्स जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं में खेलना है, उन्हीं को यूटिलाइज करना है, वो कैसे करना है, वी शुड प्लान ऑन दैट। सो आई थिंक दे वुड हैव अ वेरी गुड डिस्कशन बैक बिफोर कमिंग ऑन टू दिस गेम कि हमें ये गेम कैसे खेलनी है, where we have to click and how we have to go about it, so that could be a positive sign for Bangladesh. Also, Wahab, you had a question that you wanted to ask Misbah about Andy Flower, I think? No, this is a question to all of them, not specifically to Misbah bhai, ke Andy Flower, as we know, ke he was with PSL, he just won the PSL final this year, he was with Multan, 2 साल से है, he knows the nature of the boys, he knows के पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, he knows the player very closely. He is with Afghanistan team as a consultant. Yeah. What impact that could have made or could make on the boys of Afghanistan, and would that be like something very, I would say, positive or advantage in their You know favor? Andy Flower, I know him quite well. I know his coaching style as well. He believes in numbers. He believes matchups. So I think वो इनको सबसे पहले तो ये सिखाएगा कि कितने मैचअप्स, क्या मैचअप है, कितने नंबर्स हैं, किसकी परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा है, वो भी एक सिखाना होता है आपने ना। लोगों को स्ट्रेट अवे लड़कों को समझ नहीं आती इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक एक तो वो ऑर्गेनाइज करेगा सारी बांग्लादेश अफगानिस्तान टीम को। फॉर द टॉस, या वी आर गेटिंग रेडी टू गो टू द टॉस। दोनों कप्तान जो हैं वो शारजा ग्राउंड में अब वॉक इन कर रहे हैं, एंड वी गॉट द कैप्टन्स रेडी, सो टेक यू ओवर टू शारजा फॉर द टॉस। Well, that's the news out of the Sharjah Cricket Stadium. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, और चेंजेस जो हैं टीम्स के अंदर वो हैं, ऑफ कोर्स वसीम इज वेरी हैप्पी बिकॉज टस्किन इज देयर, एंड वहाब, गुड कॉल ऑन योर पार्ट, सोमिया सरकार इज इन, सो द 2 रिप्लेसमेंट्स आर इन, एंड वकार यू शुड बी हैप्पी बिकॉज आपने कहा था कि आज पहले वेस्ट इंडीज जो है बहुत बड़ा टोटल करेगी, तो बहुत बड़ा ही टोटल लगता है। अभी हो तो लेने दें। पर्चियों में लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ हमारे पास। Can I change it now? 200 प्लस बोला वकार ने। मैंने लिखा नहीं है। Wasim, happy to see Tuscan in? yeah, I think it seems a much balanced side.
सोमिया सरकार को मिडिल ऑर्डर में लाएंगे और तस्किन सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर है बांग्लादेश के उसमें स्क्वाड में, अगर आप उसको नहीं खिलाओगे तो फिर किसको खिलाओगे? उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम, दिस लुक्स बेटर, सिमंड्स को ड्रॉप किया है, गेल को ओपन कराएंगे एंड होल्डर इज इन एज एन ऑलराउंडर एक्स्ट्रा बॉलर, सो दिस लुक्स मोर बैलेंस साइड than the previous two games they played. रॉस्टन चेस को खिलाया उन्होंने, दूसरा स्पिनर हेडन वॉश जूनियर को नहीं खिलाया उन्होंने, तो स्पिन की ऑप्शन भी उनको आएगी और थोड़ा सा जो मिडिल ओवर्स में एक उनको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आके थोड़ा वो जिस तरह एंकर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, स्मिथ कर रहा है और पाकिस्तान के लिए भी बाबर कर रहा है या रिजवान कर रहा है, वो भी मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश की कवर अप करने की। बिल्कुल इस तरह वकार पोलार्ड का आपने सुना गुफ्तगू टॉस पे जो उन्होंने की, उन्होंने कहा इज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट आवरसेल्व्स फॉर गेटिंग अस इन दिस सिचुएशन। इट्स नॉट मिक्सिंग अप हिज वर्ड्स, ही इज जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और ऐसा ही हुआ है एंड आई थिंक ये ऐसे प्लेयर्स हैं या ऐसी टीम है, दे कैन टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ दिस ट्रबल आल्सो, यू नो, अगर इन्होंने अपने आप को डाला है तो इनको निकालना भी आता है, लेकिन इशू ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है। अगर इफ यू गो रॉन्ग नाउ देन यू डन, आई मीन सो दिस इज द ओनली चॉइस, यू गॉट बैटिंग आपके पास आ गई है, यू डोंट हैव एनी प्रेशर, जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले फ्रीली, प्ले योर नेचुरल गेम एंड गेट 200+। वहाँ दोनों टीमों ने चेंजेस किए हैं, यूँ लगता है कि रियलाइजेशन डॉन हुई, अब ये डू और डाई सिचुएशन आ गई है, थोड़ा लेट नहीं हो गई, ये चेंजेस पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशंस, जिस तरह हमने बात की तस्कीन का आना और फिर सोमिया का वापस आना, सो दे न्यू के व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग स्पेशली ऑन दिस शारजा विकेट, उन्होंने पहले मैच भी खेला, दे वुड हैव लर्न फ्रॉम इट एंड सडनली आई थिंक दैट वाज अ गुड चेंज बिकॉज यू नो आप क्रिस गेल को नंबर 3 पे व्हाट आई हैव हर्ड रिसेंटली कि आप उसको नया बॉल नहीं खिलाना चाह रहे या यू वांट टू सेव हिम, आई डोंट थिंक कि दैट शुड बी द केस, ही हैज स्कोर्ड मोर देन 14,000 runs in T20 cricket, he is so experienced, so he should be the guy who comes up front because he's an impact player. ये so टीमें देख लेते हैं साथ साथ में, वहाँ आप बात करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है जी, देखिए बिल्कुल, अब देखिए दैट लुक्स अ बिट गुड, लाइक गेल और लुइस जो है वो दोनों अटैकिंग है, रॉस्टन चेस जैसे हमने बात की कि ही विल कम इन एंड ही इज गोना प्ले दैट एंकर रोल, प्लस ही कैन बोल 4 overs नोइंग दैट बांग्लादेश इज प्लेइंग विद सम लेफ्ट हैंडर्स। उसके बाद हिटमायर ही हैज़ टू क्लिक रियली, आई थिंक हिटमायर शुड गो डाउन द ऑर्डर और पूरन को ऊपर आना चाहिए, पोलार्ड हिमसेल्फ ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, Russell, he is somebody who they really depend on because he is somebody who can change the game in like few balls and stuff. DJ Bravo, amazing. Then we have Jason Holder. He will be really good here on this wicket because he will get some bounce and some variety out of it. Then Akeal Hussain or Ravi Rampal, we have been watching them that they have been bowling well, but I think Jason Holder के आने से they have a balance in their bowling. बैटिंग भी लंबी हो गई है और बैटिंग भी डेप्थ भी आ गई है। ये बांग्लादेश के स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, मिसबा यू कैन टेक अस थ्रू दिस, दिस इज द बांग्लादेश स्क्वाड फॉर यू। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, लिटन अभी तक उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल सके, नईम इज एंड गुड फॉर्म, रन्स कर रहा है, आई डोंट नो कि नंबर 3 पे शाकिब खेलते हैं सोमिया, बट ऑब्वियसली बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, चेंज किया है, मुशफिक इज़ देयर, महमूदुल्लाह एक आधी अच्छी इनिंग हुई है बट ही नीड्स टू फायर, अफीफ़ को और हो सकता है वो नीचे यूज़ करें एज ए हिटर, महीदी, शुरफुल, तस्कीन, मुस्तफ़ीज़ 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है शारजा में, यू नीड टू हैव अ बैलेंस लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, आप 2-2 लेफ्ट आर्म स्पिनर या 2-2 ऑफ स्पिनर, मेरे ख्याल में वो एक भी फंसता है तो फिर आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप फंस जाती है। आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस बॉलिंग अटैक आज के दिन, राइट हैंडर है एक, 2 लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स हैं, फिर आपके पास ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सो मच बैलेंस साइड। Yeah, and Waqar, today they've decided to chase. I mean, this was their decision, Bangladesh's decision. Yeah. And Litton Das is not firing from the top. And the middle order is also a little shaky. पीछे तो runouts वगैरह भी सारे के सारे होते हुए रहे हैं. Why do you think are they confident कि बैटिंग हम चेस कर लेंगे अगर बड़ा, या they're too confident कि हम अपनी बॉलिंग के साथ इनको रिस्ट्रिक्ट बहुत छोटे टोटल पे कर लेंगे and then we should be able to chase? I think they're going by the trend, okay, by the numbers. What is happening in the tournament? ट्रेंड ये है कि जी 9 दफ़ा आप बैटिंग जब सेकंड करते हैं तो आप जीते हैं, एक ही दफ़ा अगर कोई जीती है तो वो कौन सी टीम जीती थी, सो वो whoever, but I'm saying that this is a trend and Bangladesh feels that they have the sources or they have the team, they have
I agree with Misbah कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है, this is a lot better, lot more balanced. Tuskin is back in, Shoriful is playing. He is a wonderful left-arm fast bowler. So they have the sources. The only thing is, can they deliver? क्योंकि body language पिछले मैच में तो बहुत बिल्कुल poor नहीं थी. लगी। आज इनको उठाना पड़ेगा अपने आप को, and if they can bowl out आज West वो Indies somewhere पिछले around मैच में उनकी बॉडी 150. लैंग्वेज थी जैसे आज ये नहीं आया काम पे। सुबह जवाब. देखिए वकार भाई, Imagine you coming to Pakistan squad in the morning in a bus like this. टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिए वसीम भाई। हैं? कहते टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिए मैंने। he used to come like Even that. T20 में। मैं तो इसको सबसे पहले उन्हें लाता। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस हवाले से जो आपने बात की कि बांग्लादेश कोशिश करेगी कि वेस्ट इंडीज़ जिस प्रेशर में है पहले बैटिंग में उनको रिस्ट्रिक्ट करें, वो अपने ही प्रेशर में कोई ऐसी गलती करें कि वो एटलीस्ट कोशिश करेंगे 150 से नीचे उनको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम बांग्लादेश की है, जो बैटिंग वाइज उनकी जो हालात हैं, एक आधे बैट्समैन पर डिपेंड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग ओवर एंड अबव 160 170 मुश्किल हो जाएगा उनके लिए चेस करना। Your favorites for this first game? West Indies, I think, looking at the ground and everything, pitch. All right, Wasim? My favorite or who I want to win? They're two different questions. Who you think is favorites tonight to win Okay. the first game? West Indies probably. Waqar? Windies. West Indies? Wahab? I'll go against Bangladesh. बांग्लादेश। There you have it, दोस्तों। तो हम आपको लेकर जा रहे हैं शारजा, उसके बाद जाएंगे दुबई। मुलाकात होगी आपसे at the end of the innings of the second match. Good luck to Pakistan. See you on the other side.